So, hey everyone, this is our new episode of our podcast, and today we are going to discuss about globalization and its effect on Indian society. So, moving forward, we will be discussing what is globalization, how was globalization introduced in Indian society, and then moving forward, we will be looking at how it has affected various sectors of the Indian society. So, continuing on that trend. So, uh, to question to both of you, what do you understand by globalization in general terms? Okay. So, Uh, uh, I'll start with a brief introduction with the term globalization. So hmm, when we heard the term globalization, what do we mean by that? So hmm, is we can we say that we are doing trade at international level? Is it lie under the globalization? So it will be a very narrow aspect. So simply the hmm, trade will not be a globalization. hmm, Again, we can see that foreign investment is there in our country. There are so many MNCs are hmm, held their offices in India. So is this the globalization? Again, so globalization is not only trade, globalization is not only foreign investment, it is a complete package. okay, So foreign, if I can put it in this way, I'll say that hmm, globalization is a uh, it's like collaborative effort. it's a global market. It's a global Hmm, market, and which has minimum restriction. So that will lie in the we can put it as a globalization. That the hmm, world is acting as a global market. So in that package, everything comes in automatically. Trade comes in, foreign investments come in, and we open our economy. hmm, We open the competition as well for our local hmm, traders, for our local artisans, for our local craftsmen. So hmm, globalization is like a, complete market, and with okay. minimum restriction. And other things like what do you call the economy MNCs that have their branches in various countries. They also led to globalization and the collaboration between the intellectuals from various countries, and also the political ideas. The communist countries, when they converted to what do you call democracies, then that led to globalization. So globalization is basically what you are trying to say is what the collaborative effort of all the countries to come to a better conclusion of better society and or to gain profit from each other. Yes, kind of. Yes. Okay. But it cannot be put it in a single bracket. It will be Mhm. in many terms, as you have said that they have political interaction, they have economical interaction, so and Mhm. so. So it is a complete package. Okay. So, what caused the globalization? If we look at the global world and then to India. As the answer lies simply with the what led to colonization, that led to globalization. Mhm. So the the initial aim, the initial idea always have been the economy, always have been the money. Mhm. That was the origin of colonism, and that Mhm. is the origin of globalization. At the Mhm. level of globalization, the developed economy, yeah, the emerged economy, they don't wanted to control the other nation directly. Now they Mhm. wanted to control other nation by their market. So they want to expand their product to other economies as well, so that uh, their other countries markets will act other countries markets will be can be fulfilled with their product, and some developed nation can gain from their economy. This was the basic idea of globalization. How now at initial level, as India got independence in 1947, Pakistan and nearby in next 10 to 15 years, plus minus 10 to 15 years, many Mhm. nations got their independence from colonism. So initially they all were
in same mood that we will close our economy, we will self develop ourselves, we will Mm. not we will not rely so much on these western or European masters. So Mm. they started in that way. But cut short, what was the what was the cases that lead to globalization, that lead to make India, that pushed India to make himself a part of a global market. So the issue, as many of us are aware, was the 1991 crisis. What happened in 1991 crisis, when when as a nation, we India, we had a Mm. vision on 1947 that we are going to be a self-reliant economy, and Mm. we will promote in-house development, in-house manufacturing, है ना? Mm. We will use the a little Russian tilted socialism mixed economy formula. But the problem of such formula is this formula requires a a very, I'll say, a very tight central control and a very heavy execution. So India failed at that part. Mm. The vision got diluted in terms of corruption, in terms of license raj, in terms of, we have seen three wars in 5-10 years span. 1961 war, then 62 war, then 71 war. So again, and political structure in 80s were very, turmoil level, that we see the end of the single party system, Congress. Mm. Then we see the rise of multi party system, then they collapse again. So politically also we were not very stable condition. So all these scenarios resulted in such a way that in 1991 we were economically so bad that we were only I think some 15 or 12 days of foreign exchange. So at that time, we were bound. We were bound to Mm. open our economy, and we were bound. How we were bound? We can simply we should have simply taken loan to World Bank or some other such such organization. But what happened? The US and other developed economy have put on a condition for India that if you want financial aid from our side, you must open your economy. So that was the moment in 1991 which which resulted as the globalized India. So Okay. we open our market to other nations. Yes, this was the And the reason. LPG reforms were introduced. Yes, LPG reforms. Hmm. So before moving forward, I would like to ask कि अगर ये कंपल्शन नहीं होता तो would India have to globalization or would it have taken more time in the future? Yeah, again, it would have depend on the vision of the leader of that time, and the political situation of the country. As if we see the counterpart China. China also started the same strategy that we are going to be self-reliant. We are going to be rely heavily on our natural resources, and Closed we will economy model. convert our economy in a manufacturing economy. So they Hmm. also cut off themselves from rest of the world for 20, 30, 40 years, and they did it. Hmm. So as I said earlier, it totally depends on the execution part. So maybe China may have had been executed that betterly, and we But as an hmm. Indian economy may have not done so well for so But many reasons. China was not that culturally diverse. India was way too culturally diverse to be controlled by a central system. Yes, this is one of the factor. Hmm. This is very great factor that India is Yes. very cultural and also India from 1947 onwards we have Hmm. seen some type of you know uh, political, we are bounding Hmm. constitution wise that we are a democracy, and we Hmm. are bound, we are behaving like a democracy, we are following the principle laid down by constitution. While in other countries like Russia, China, they are portrayed themselves as they are republic or they are democratic, but they are not.
So this may be another factor as well. Hmm. Yes. And so, would you call globalization as positive or negative? Because if you see that China has developed into a second in the economy, and even though the condition of living might not be as happy as compared to Ireland or other, but it has become a global superpower when it comes to economy. So, would you call the globalization as a positive or a negative? Yeah, Or should it's hard to answer with a single tilt. correct. Is it positive or Okay. negative? It had both the ends. This coin has both ends, so it has positive aspect as well, it has negative aspect as well. Hmm. Before diving into depth of this, I'll like to the what was the immediate effect of globalization in India. So the immediate effect was there was, due to heavy centralization there before globalization, due to heavy centralization, we see here there have license raj was there. So due to that, the private investment, yeah, private interference was discouraged very much. But what happened after globalization? This license raj has uh, has reduced to almost 90%, 80% sector. So Hmm. now the private, there is a push for private sector, and this has led to come economy on track in next 5 to 10 years only. So what was the situation of foreign reserve in 1991? That situation was very good in next 5 to 6 years. So this was the very immediate effect that the private players got a push. But so this was the positive one. If we see the negative one, we see in the first negative we have seen of globalization in 2005 period. So Hmm. we see it was a great recession period, and it originated from USA. But the impact of that crisis have also seen in India also. So there was a great recession in Indian IT sector or some related other sector as well. So this was the first negative impact we have seen of globalization. So my point is here, in a way we are connected to global market. We are also a part of global market. So the greater positive is if we have something of good quality and Hmm. at better cost. So we can be a we can be a seller, Hmm. in simple word, that we can be a seller and we can gain as much as possible. But at the same time, because we are a part of global market, and Hmm. if a situation occur, if a catastrophic situation occur in some greater nodes or in some greater points, we became automatically vulnerable. It's like कि आपका बाढ़ जो है, या फिर कुछ कुछ डिजास्टर, कुछ कैटास्ट्रोफिक इशू बिहार में आया है, लेकिन Hmm. हम उसका जो इम्पैक्ट है वो महाराष्ट्र तक में देख रहे हैं। तो Hmm. इस तरह एक ग्लोबल मार्केट इस तरह काम करता है। Hmm. हाँ कि ज़्यादा डिपेंडेंस की वजह से कोविड में भी जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिस्टर्ब हो गया था, तो पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो गया था ग्लोबलाइजेशन में इफेक्ट की वजह यस। से। And where do I see any point? I have been talking Okay. too much. Any point you Okay. guys have to add? Okay, so moving forward. So before moving forward, I would like to say कि ग्लोबलाइजेशन की पूरे वर्ल्ड में इसलिए आया क्योंकि एक तो डेमोक्रेसीज बहुत सारी बन रही थी कम्युनल, उसके बाद तो जब डेमोक्रेसीज बन रही थी तो वहाँ पे यूनिटी फॉर्म हो रही थी, और फिर दे वर फोर्स्ड टू ओपन अप द मार्केट, और फोर्स्ड और वर एडवाइस की they can share their intellectual properties and their resources like nuclear technology and other technologies. There was also IT which led to ease in communication. तो communication की वजह से काफी ज्यादा वो हो गया कि that led to
ग्लोबलाइजेशन एट द लार्जर स्केल की लोग एक दूसरे से के साथ प्रोजेक्ट शेयर कर पा रहे थे, अपने एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा दूर से कंट्रोल कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर में स्विच हुए तो इट वाज इजी टू ग्लोबलाइज मूव ऑन टू अ ग्लोबल लेवल। सो दीज वर द फैक्टर्स दैट आई थिंक वर देयर। एंड moving onward, Anand, would you like to add something to the conversation we had till now? And then what is the impact of if you do not, then what is the impact of globalization on Indian culture? So I will what I will say that globalization first the point is globalization describes how to trade and technology have made the world into more connected and interdependent places. Globalization has captured in the scope of economic and social changes that have come about as a result of that in the Indian context, that what it affected on Indian society is first it is economic growth, second it is education, and third it is agriculture, informal sector, social security and cultural erosion, and urban poverty and structural inequalities. What I will explain every point. This what is the impact of in economy of globalization. So globalization has increased the business opportunities in India. And before it was not like that. People are also doing businesses in internationally, but after the globalization has came, it was totally became different. It has opened the different types of opportunities to Indian sellers to explore other markets after globalization has came. In the health sector, globalization has played a very important role, because if you know about in India, this advanced technologies of medical standards has increased. New technologies has came after this globalization. And if you see in IT sector, there are I think so. It is a huge reform after globalization. This rapid rise in information ICT, ICT. But at least it was a not so, what can I say, मतलब उतना नहीं था जितना इस समय आफ्टर ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो गया. और poverty has also reduced after this globalization has introduced. So before what I say before, it was just like मतलब पहले का क्या था कि अपने ठीक है पहले मतलब इतना अमाउंट मतलब काम भी, एक तो पहली बात तो रिमोट एरिया में इतना काम भी नहीं था जितना अभी है उस हिसाब से आफ्टर क्या कहेंगे ग्लोबलाइजेशन नहीं कहेंगे उसको, बिकॉज ऑफ इट इज गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि इकोनॉमी जीडीपी रहना चाहिए. कंपटीशन का वो रहता है कि हाँ वो देख कंपेयर करते रहते हैं दूसरी कंट्रीज से, और तो प्रेशर रहता है गवर्नमेंट की वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाई नॉट अस, तो एग्जांपल रहता है. हाँ तो
इसमें ना बहुत सारे सेक्टर्स हो जाएंगे। अभी तूने जैसे अभी तूने एम्प्लॉयमेंट का बोला, फिर उसके बाद तूने एजुकेशन का बोला, फिर तूने उसका भी बोला पॉवर्टी का। तो लेट्स मूव ऑन विद द एक एक करके सेक्टर्स लेते हैं सारे। तो सबसे पहले कल्चर पे देखते हैं कि कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो कल्चर पे तुम लोगों को क्या लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट पड़ा है, और व्हाट आर द पॉजिटिव्स की पॉजिटिव्स क्या क्या पड़े हैं और नेगेटिव्स क्या क्या पड़े हैं। ठीक है। So anybody would like to take? Anand? Yeah, go first, go. भाई इंग्लिश में चलना है कि हिंदी में? दोनों चलेगा, वही क्लियर होना चाहिए बस। जैसे आप बस कंफर्टेबल। देखिए भाई, कल्चर का क्या सीन हुआ कि ग्लोबलाइजेशन होने का मतलब इंडियन कल्चर में क्या हुआ कि हम लोग ज्यादा वेस्टर्न साइड की तरफ भागने लगे। हाँ उधर वेस्टर्न उस लैंग्वेज ज्यादा मतलब अपनी मातृभाषा ने यूज करके इंग्लिश की तरफ ज्यादा फोकस हो गया वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के क्लॉथिंग, मतलब वहाँ का पूरा ट्रेडिशन हम लोग अपन फॉलो करने लगे। हाँ का वो इंग्लिश अपना वो हो गया, डोमिनेटिंग हो गया पूरे वर्ल्ड में। डोमिनेटिंग लैंग्वेज हो गई वहाँ का हाँ, यार। वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज को खा जाता है आज के डेट में, क्योंकि वेस्टर्न एमएनसीज में रिक्वायरमेंट होती है और हर किसी को ट्रेन करना पड़ता है कंपल्सरीली, सो ही कैन बी रेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन भाई वहाँ पे एमएनसीज में ये भी होता है ना कि आप ऑल इंडिया से ऑल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है ना वहाँ पे, ऐसा कुछ सीन होता है। वो है ना कि इंग्लिश डोमिनेटिंग लैंग्वेज बन गया इंग्लिश globalization। डोमिनेटिंग हो गई, वही हाँ, है। तो अपना ट्रेडिशनल लैंग्वेज लॉस्ट हो गई उस प्रोसेस में, क्योंकि मार्केट भी एक्सपांड हुई सब कुछ। तो और कल्चर पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़े? कल्चर पे ऐसे भाई और क्या पड़ा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि वेस्टर्न आइडियाज को एक्सेप्ट करने लगे, मतलब तो जीन्स वगैरह पहनने लगे, अपने जो ट्रेडिशनल वेयर्स हैं वो सब कम हो गए। धोती कुर्ता छूट गया, कहाँ कोई हाँ, वही पहनता है? कल्चरल डिजाइन्स और वो अपनी जो आइडेंटिटी थी दैट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू द वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। की वेस्टर्न ब्रांड्स काफी आ रही हैं मार्केट में इंडिया में, जैसे H&M और कोरियन ब्रांड्स वगैरह हो रहे हैं। तो वी आर लूजिंग ईच ईयर कि अपना वेस्टर्न वो खोए जा रहा है ना। वो तो सबसे हम्म, मतलब कुल मिला के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा अपने ऊपर पड़ गया है कि अपन ये हम्म, इंडियन का ट्रेडिशन पूरी तरह से एकदम लॉस्ट हो चुका है। मींस वो ये एज वेल एज तू देखेगा तो आज मतलब मेन के ऊपर भी है, सेम वही सिचुएशन वुमेन्स के साथ भी है। ऐसे पॉजिटिव्स भी हुए हैं। ऐसे पॉजिटिव्स क्या क्या लगता है तुम लोगों को? पॉजिटिव से यार कल्चरली कल्चरली नेगेटिव सारा मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, आप आपको क्या लगता है पॉजिटिव? मैं ऐसे से दैट कल्चर, सो नो डाउट चलो मैं we देखता हूँ कुछ have कि been अच्छा आपका माइक म्यूट है। आवाज आ रही है? हाँ भी आ रहा है। ठीक है। As Anand raised point about culture, that yeah, we have become हमने धोती कुर्ता छोड़ दिया and we have shifted to the blind follower of westernization. I would like to add यार that western clothes have been have already been in the trend, in the fashion when we were colonized. So we cannot say that globalization has मगर वो भी globalization led ग्लोबलाइजेशन हुआ ना वो भी। I'll say more, yeah, again about English language, because so many nation in Asia and in Africa, they were colonized by European nations, and in Europe the common language was English. So we were bound to be, if we will talk at global level, we are bound to be talk in English. So it is a phenomena at a global level. Again, we are not the predator of globalization, we are the predator of colonism. If we will go to depth, that yeah, what
if we are talking about the impact of globalization on culture, so we have Hmm. to talk about impact of globalization on culture after 1991. In my opinion, we have to consider that what Okay. happened after 1991, Hmm. which has changed our culture. Hmm. So I'll say one big change which I can recall of is the globalization boomed the service sector in India. Before globalization, we were more emphasizing on agriculture sector. We were more emphasizing on manufacturing sector. Hmm. It was the global market. After opening the global market, that Hmm. in India we see the flourishment of service sector also. So in the service sector we see a boom of IT sector. So Hmm. what IT sector, what I say in what aspect IT sector has changed the culture, I would like to talk about that. So IT sector in a greater say give a new field to women. Before that, women were seen the the primary role of women in as a professional were seen in the field of education only. Hmm. So for the girl, the profession was to be a teacher. But Hmm. IT sector gave a new field, a new opportunity to girl, to women. So when they start in their career in such field, they start to join MNCs. They learn their culture. So from there, you know, the I'll use the word the conservative balance of a household. It globalization had had a had a Hmm. considerable impact on that. Hmm. Now it was not only that yeah, women will do some XYZ task and so and so. So Hmm. I'll say globalization. What are the impact of globalization in culture? Will be more as a that globalization give new indicators, new parameters to Indian audience. Hmm. For example, Naveen has talked about jeans. So jeans per se is not a product, but jeans is a indicator of freedom, that I am free to wear whatever I can. Same cheese have impacted the culture of China also. They were not very they were not very fond of jeans. They also Hmm. see it as a their deterioration of their culture. So Hmm. globalization give some ideology to young, to middle class. Yes, middle class. By say middle class, so we will say globalization created a new middle class, and Hmm. that new middle class created a culture of nuclear family. That is again a impact on Indian culture. That after globalization we see a very exponential growth of nuclear families. So I can recall at this point of these two. Okay. Okay, so if I think into that, at the globalization level, India's culture has been very much appreciated all over the world, and the material related to Indian culture always goes viral on the internet, and there are many people who are studying the Indian culture and publishing books and that. So that globalization has affected that also. The importance बढ़ गई है, and India has gained some soft power because of globalization. We have something a rich culture, and now if someone shares about the culture, it goes viral, and it has led to positive in that. So Rich then there is culture, rich lifestyle, yoga is a big example. uh, and there is multilingual what you call the education. Because of globalization our languages are being adopted at the foreign universities and states, uh, and alongside the normal languages, more languages are being taught there. So there is what you call the cuisines and food. कि globalization की वजह से new foods have been introduced and new cuisines have been introduced. If you look into what you call the positives of culture, that's how our culture has evolved. And if you look into the negative, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी हिट हुआ बाहर के ग्लोबल मार्केट से compete नहीं कर पाने की वजह से. फिर
उसके बाद हमारा वेस्टर्न मीडिया इन्फ्लुएंस की बाहर वाले लोग जो अपने विजय आइडियाज प्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ के काफी लोग उनको फॉलो करते हैं विदाउट इवन कंसीडरिंग, और हमारा इंग्लिश का डोमिनेंस तो है ही है. So that's how I think was my conclusion and take on how culture affected our Indian, how culture was affected by due to globalization in India. So would anyone of you like to add to cultural part of it? कल्चर में कुछ और ऐड करना किसी को? ठीक है, चलो कल्चर कंक्लूड करते हैं. हाँ बोलो. Lifestyle changes are there in culture, but that may itself included in nuclear family and middle class. So no. So then there is what you call evolving lifestyles, religious transformation, and shifting social landscapes. Okay, so let's move on to next. How the globalization has impacted our youth. हमारे youth पे क्या फर्क पड़ा है globalization की वजह से? तो पहले जनरल देखते हैं, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं. चैलेंजेस क्या है हमारे पास और फिर क्या कंक्लूजन हो सकता है. I'll say in terms of youth, their choices has expanded. They has a big buffet of choices now, and so at 30 youth, I'll say if you will start considering from age of 15 years, so from 15 years, 16 years, 17 years, now due to this globalization, due to this multiple platform that appeared, we in today's world we can see that 15-16-year-old boy or girl, they can earn their living by themselves also, if they are skilled or they are semi skilled, they know some IT skills or something. So this is, and again by to learn the skill, they can learn the skill by itself by their homes free of cost, also by YouTube or so and so. So what I'm trying to say is that all this is related to technology, but technology is itself a subset of globalization. So the opportunities open up. Yes, youth got expanded choices, and they got expanded opportunities. Okay. So the first thing is that. Second, I'll say as the opportunity to grow increased for younger generation, the opportunity to get damaged also increased for them due to globalization. Because like I'll again state the example of jeans. As I said that jeans is not itself a product. It was a symbol of freedom. So in today's scenario also there are so many symbols of freedom, like social media, that I can post anything on social media. It is very hard to explain some younger boy or younger girl that you should not post so and so things on social media, or you should keep a distance from social media. It is very hard to tell or very hard to make him or her understand. So the point, and again the cool culture of alcoholism, the cool culture of getting high. So all this, I'll say that globalization or opening a global market, what we say that dark web is also there. All these, what they are also the expanded opportunity to make our youth deteriorated. TikTok, Instagram, Reels, etc. So the opportunities, if they are not used in proper manner, they will deteriorate the youth as well. So this is the negative impact, I'll say. Okay, so first of all, more looking at the positives, कि careers और education में काफी effect आया. New opportunities have been opened. कि careers उनके लिए नए opportunities खुली हैं कि they can choose from the age of 16 to above.
and one can restart their career at any level. और फिर एजुकेशन की they have opportunity to learn anything कि MIT का कोर्स वगैरह that is available कि कोई भी सीख सकता है, कोई नई टेक आती है तो ओपन सोर्स कर देते हैं, तो one can learn और ग्लोबली एक्सेसिबल है और फ्री में मटेरियल मिल जाता है। फिर वही कि ग्लोबल टीम्स जो अपॉर्चुनिटीज का इनका फायदा उठाते हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स और वो सब हो गए, जो अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर पाते हैं और अपनी ट्रेडिशन वैल्यूज भी साथ के साथ मेंटेन कर पाते हैं। तो दैट इज समथिंग की पॉजिटिव केम आउट ऑफ व्हाट यू कॉल की ग्लोबलाइजेशन। और देयर इज की चेंजिंग वैल्यूज की इंटरनेशनल वैल्यूज काफी जो हमारी कंट्रीज में भी काफी वैल्यूज थी जिनको ब्लाइंडली फॉलो करा जाता था, विद द एग्जांपल ऑफ कि बाहर की एग्जांपल को देख के आजकल का यूथ अवेयर होने की वजह से कि उन आइडियाज को एस्टेब्लिश कर पा रहा है अपने उसको। अभी आपने शायद कैमरे वाला बटन ऑफ कर दिया। हाँ, तो अभी जो नया यूथ है ही इज अवेयर अबाउट कि क्या क्या वैल्यूज बाहर माने जाते हैं और वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके क्रिटिकली थिंक करके अपनी वैल्यूज को बेटर कर पाता है कि इंडिया में ये चीज इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही। सो दैट इज समथिंग आई थिंक की पॉजिटिव है उसका ग्लोबलाइजेशन का। सो मूविंग टू नेगेटिव कि हाँ, तो फिर मूविंग टू नेगेटिव कि ज्यादातर जॉब्स जो हैं अब हाँ बोल किसी नेगेटिव इम्पैक्ट जो तो नेगेटिव में क्या क्या तुम्हारे को एक दो पॉइंट हो चुके हैं, तो बाकी एक ज्यादा मैं बताता हूँ कि यूथ पे क्या पड़ता है कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इतना सारा डाटा होने की वजह से और बहुत सारे एग्जांपल्स होने की वजह से इट कैन लीड टू व्हाट यू कॉल की मेंटल हेल्थ कंसर्न, कि लोग उनको मेंटली प्रेशराइज हो सकते हैं और फिर उसके बाद कि दे कैन फील कि समवन एट दिस लेवल कि वो इतना ज्यादा वो कर रहा है विदाउट कंपेयरिंग दी अपॉर्चुनिटी की उनके पास कितनी है और कंपैरेटिवली उसके पास कितनी है। और फिर बाकी ज्यादा हो सकता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ा है। हाँ हाँ, वही मेंटल हेल्थ में सभी कुछ आएगा, डिप्रेशन, ADHD वगैरह सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद कि हमारी मेजर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको IT सेक्टर में करना है तो उनको अर्बन में करना पड़ता है, तो दे आर लेफ्ट बिहाइंड। और क्या हो सकता है? फैमिली हो सकता है। I'll add some positive negative और मैं कुछ सेक्टर टच करूंगा सीधा सीधा, है ना। फिर जो नेगेटिव होता है कि नेगेटिव में ये भी हो सकता है कि जो फैमिली के साथ यूथ आजकल ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता अपने वेस्टर्न आइडियाज की वजह से, और तो जनरेशन गैप की वजह से देयर इज कम्युनिकेशन गैप एंड लोअर हैप्पीनेस लेवल कम हो गया फैमिली में। आजकल तो बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज्यादा लोग भाग रहे हैं। हाँ, वो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि पॉजिटिव नेगेटिव उसका यूथ उसी साइड ही जा रहा है क्योंकि आइडियाज अलाइन नहीं होते फैमिली के साथ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे अपने उस वाले सेक्टर में, क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा इंडियन यूथ। तो अब चिल्ड्रंस पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो रेलेवेंट है, या फिर यूथ में किसी को कुछ ऐड करना है इससे? यूथ और चिल्ड्रन हम एक साथ ही रख सकते हैं, वो सही में नहीं, मतलब चिल्ड्रन का ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है ना कि उनको साथ में उनको कंसिडरेशन कुछ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी बच्चों को। ओके, चिल्ड्रन में हम टॉक अबाउट चिल्ड्रन, सो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट यही था कि हेल्थ सेक्टर में हमने पहले काफ़ी चीज़ें सीखी बाहर से कि भाई चाइल्ड लेवल पे हम क्या क्या करना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया 1991 के बाद से अगर हम देखें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के साथ ही टेक्नोलॉजी भी आती है आपके देश में, और जब टेक्नोलॉजी आती है तो आप ये चीज़ें इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया और सिंपली चाइल्ड रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास you have the access to better data. If you have access to technology, you have access to better data, and if you have better data, you have you can sense the origin of the problem very easily. So we see some program, child care development program, and I'll say
Anganwadi scheme. All these were the result of there were some issues, and that issues was reflected simply by data. The data was showing that there is some problem. We need some technology to tackle it. So first impact, I'll say that globalization bring in that kind of tech which lead, yeah, that kind of strategy, not technology, strategy as well, which helped in creating an ecosystem which helped in reducing the child mortality rate. And currently we are facing the issue of stenting, underweight, overweight, such Stunting. things. These things also can be you know can be rectified if we use the global technology. If we understood the case studies in different nations, so we can also resolve that issue as well. Hmm. And children as well, globalization impact on children. Education क्या sector of करेंगे child. तो यस, एजुकेशन सेक्टर पे भी बात कर सकते हैं कि एजुकेशन लेवल या फिर एजुकेशन Standard of education has increased after the globalization of यस Hmm. smartphones. हाँ, उनको एजुकेशन का ज़्यादा स्टैंडर्ड मटेरियल मिलता है, एनहेंस लर्निंग हो चुकी है, मल्टीलिंगुअल के वो स्पेनिश वगैरह सीख सकते हैं साथ के साथ। और फिर यस उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि इंडिया में कोई सेक्टर नहीं है, मतलब मान लो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का सेक्टर नहीं है, मगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उनको ब्रॉडर वो है कि फिर उसके बाद नेगेटिव्स होते हैं, जैसे कि तो वो फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि उनको आई साइट का इश्यूज़ हो रहा है, हेडेक्स वगैरह हो रहे हैं। नेगेटिव्स में मतलब ये भी होगा, जो पॉइंट पहले ही रेस कर चुका है तू, कि क्या है कि अब क्या है, चाइल्ड का इनिशियल ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पहले होता था, 7-8 हाँ, साल की एज तक होता था, 10 साल की एज तक होता था, 12 साल तक की एज तक होता था। वो अब एक्चुअल में क्या होता है डेवलपमेंट कि में हेल्प करता है। हाँ, वो एक्चुअल ह्यूमन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ में भी मतलब मेंटल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा रोल था उसका। लेकिन अब क्या है कि 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, वो टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्टेड है, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, टीवी, ये सब, वो इन चीज़ों से इतना कनेक्टेड है कि वो बहुत इनिशियल लेवल पे ही ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को काट सकता है। सो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और उसमें ड्रॉबैक मतलब ग्लोबलाइजेशन का हम इतना ज़्यादा नहीं कह सकते जितना हमें हुँ, पेरेंट लेवल पे या फैमिली लेवल पे अवेयरनेस को दोष देना चाहिए इस चीज़ का। हुँ। सो ये खैर एक बड़ा ड्रॉबैक रहा। और और एक रिस्क भी है कि बच्चे ऑनलाइन जाते हैं तो दे कैन बी एक्सपोज्ड टू समथिंग दैट इज़ नॉट राइट और सूटेबल फॉर देम। तो उनको यस फिजिकल मेंटली और वो मेंटली दिक्कत हो सकती है, जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे वो ओवर द इंटरनेट, दैट दैट इज अ रिस्क। और या फिर प्रेडेटर्स वगैरह उनको रीच आउट कर सकते हैं उसके थ्रू, अगर साइबर सिक्योरिटी इतनी एफिशिएंट नहीं है। दे आर पोकेमोन गो एक्सपोज्ड। एग्जाम्पल है इस चीज़ का काफ़ी बड़ा भी। पोकेमोन गो गेम की वजह से कितने सारे बच्चे जो है मतलब मरे थे, तो हाँ। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। और गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स कर रही है, लॉज भी लेके आती है कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती है, मगर इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और फिर और क्या हो सकता है कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की, 12-12 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं, उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। फास्ट फूड प्रमोट होता है ऑनलाइन, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल चेन्स फास्ट फूड को प्रमोट करते हैं बिकॉज़ इट्स ईज़ी टू मेक एंड ईज़ी टू व्हाटएवर चैनलाइज़ एंड तो उसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। फिर ये नेगेटिव्स हो गए काफ़ी, ठीक है? और बाकी इंडिया में और क्या ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से यार एक पॉइंट मैं उठाना हुँ, चाहूँगा कि हुँ, initially when we introduced we opened our market to global level. Initially the regional traders, regional communities, non-organized sector, small scale industries, they were hit very hard. So I'll give you an example as well. Like in case of Gujarat and Maharashtra region, it was the epicenter of cotton industries at that well. And mind it, cotton, when we say cotton industry in India, the cotton industry was not in the form of factory.
So it was more a non-organized sector. Like 1,000 or 10,000, 20,000, n number of people were involved in this industry, but they were involved in such a manner that every person is involved, and each factory or each shop were having only 2-3 workers only. So it was that sector. It was not at the factory level. So when this 1991 reform, entered India, they were hit very hard. These cotton traders were hit very hard because they now the market, now the government protection was over. These traders were protected by government, and somehow the foreign material which were coming to Indian boundaries, they were facing some Indian tariff barrier, and they were in that manner they were costlier compared to that cotton traders of Gujarat. But when we open our market globally, that cheap garments replaced or the first thing, that cheap garment replaced that traders, and second, the cotton industries got modernized. So these regional merchants, they were hit very hard, and they were jobless for 3 to 4 years. This is a case study, and there are many case study. We can say same for utensils, like we use in our daily life. We are using steel ke bartan, tambe ke bartan. So there was a community which were engaged in that tradition of making utensils from a long time. But when we open our but when we open our economy, सिंपल स्टेनलेस स्टील के ग्लास बड़े सस्ते में मिल गए। वो कम्पीट नहीं कर पाए ग्लोबल चेंज के साथ में, क्योंकि उनका मार्जिन, उनका बड़ा सिस्टम होता था तो वो मार्जिन को कट आउट कर सकते हैं, और उनका छोटा सिस्टम होता है तो उनको मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वो कट आउट नहीं कर सकते, तो दे कैन कम्पीट। हमारा इनफॉर्मल सेक्टर वाज वेरी हार्ड, मतलब हिट हुआ इस चीज़ से। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने भी पकड़ी इस चीज़ को कि भाई what can we create which can we sell globally. So इनफॉर्मल सेक्टर खड़ा है आज भी, और इनफॉर्मल सेक्टर अब वो चीज़ें बना रहा है जो वो इंडिया और इंडिया से बाहर भी बेच सकता है, या फिर एटलीस्ट इनफॉर्मल सेक्टर एंगेज्ड है ऐसी चीज़ों में एल से जो एटलीस्ट एक लोकल लेवल की जरूरत को पूरा कर सकता है। जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन पेनिट्रेट नहीं कर पाई, वो उस जगह पे अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी है, और कंपटीशन का अपॉर्चुनिटी मिल गया उनको कि दे कैन स्केल अप एंड प्रोवाइड अ प्रोडक्ट दैट इज इंटरनेशनली, वो स्केल कर सकते हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, तो अभी अपना चिल्ड्रंस का हो गया, फिर अभी वो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर पे अभी आगे हटेंगे। अभी उससे पहले अभी हमने यूथ का करा, फिर उससे पहले हमने किया था कि उस पे सबसे पहले क्या किया था हमने कल्चर पे, फिर उसके बाद हम यूथ पे आए, फिर हम आएगी बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं कि वुमेन्स पे क्या इफेक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज दे आर ऑल्सो दीज आर ऑल्सो कि हमारे इकोनॉमी का, वो अपनी सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है। और इट इफेक्ट्स की जनरली सोसाइटी कैसे इम्प्रूव करती है, तो अपने उस पे वुमेन पे क्या इफेक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। वुमेन पे यार, यस आनंद यस वुमेन्स पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखें तो अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई है सारे सेक्टर को ले लो, वेदर इट इज आईटी सेक्टर, वेदर इट इज अपना यूपीएससी सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, तो सारी सेक्टर पे इनका अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन उसी के साथ साथ इन पे एक लोड क्या कह लो या वो प्रेशर कह लो, वो कम नहीं हुआ है घर को संभालने का। हाउस होल्डर जॉब करनी पड़ती है, दोनों उनको देखना पड़ता है, तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि उनको वुमेन्स को एजुकेशन के लिए अब जो है एजुकेशन के लिए ये हो गया है कि मतलब किसी भी उस पे क्या सोचते हैं लास्ट स्टेज तक ले सकती हैं। पहले था कि अपने कल्चर में ही नहीं था कि एजुकेशन लड़कियों को
पढ़नी चाहिए। जस्ट उनका ये होता था कि 18 साल की हुई नहीं कि शादी कर दो। हाँ, वो कहानी याद है ना, कृतिकान में बताई थी कि किस वजह से वुमेन का एजुकेशन बंद कर दिया था। हाँ उनका वुमेन्स में अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गया है। इस साल का लोकसभा देख ले तो अपना वुमेन्स का काफी पार्टिसिपेशन है। सब अब मगर अभी भी ज्यादा कहाँ है, अभी भी वही है, 13-14% है। अरे तो फिर भी इंक्रीज तो हुआ है ना पहले से कंपेयर टू लास्ट लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस ईयर इट हैज इंक्रीज्ड। हाँ, बढ़ तो रहा है धीरे धीरे, ये भी बढ़ ही रहा है। मगर साथ के साथ नई नई प्रैक्टिस भी आ जाती है ना, पंचायत पति वाली। कैसे? जैसे पंचायत पति वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अच्छा हाँ लोकल 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 गवर्नमेंट में कंपलसरी कर दी कि ये सीट रिजर्व है वुमेन के लिए, तो पंचायत पति चला रहा है। हाँ तो वो तो फिर विधानसभा वाला भी वही हाल है ना। हाँ, उधर भी वही हाल है, Same डिसीजन मेकिंग उसी को रेस्पेक्ट की जाती है, मगर हाँ सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग। वो तो बस सिग्नेचर करने के लिए एक होती है और वो तो ये सब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है कि औरतों के पास अपॉर्चुनिटी है, निधि आईआर वगैरह की अपॉर्चुनिटी है, और वुमेन को अलग से एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव देती है, जैसे सेवा हो गया, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए बहुत सारे, जो वुमेन्स ने ही बनाए हैं और एक दूसरे को लोन देते हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन में, जो कि ग्लोबल अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कि इंटरनेशनल जो मूवमेंट्स होते हैं उनको वो यहाँ तक इफेक्ट डालते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और फिर हाँ बोल। ये रिजर्वेशन जो वुमेन्स को मिलता है वो भी ग्लोबलाइजेशन में आएगा कि ये पहले से ग्लोबलाइजेशन में आ सकता है, मगर डायरेक्टली वो नहीं है। आई मतलब पता नहीं लिंक बिठा सकते हैं इस चीज में या नहीं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया 1991 में, और 1992 में ही हमारा 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें हमने वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो हम इनडायरेक्टली तो कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद ही वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पॉलिटिक्स में। हाँ ये कह सकते हैं इसकी बात। इनडायरेक्टली लिंक तो कर सकते हैं इस बात को। हाँ, बाहर से ही आइडिया आया ना कि इक्वालिटी दो, तभी तो यहाँ पे वो इक्वल राइट्स मिलने शुरू हुए। टेक्निकली डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। क्योंकि इंडिया में आइडिया नहीं आता अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है। और ग्लोबलाइजेशन से मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एज अ नेशन इंडिया को ग्लोबली खुद को बहुत सारी चीज़ों में लिबरल भी दिखाना है, ठीक है। तो चाहे वो आपकी ओल्डर जनरेशन हो, चाहे वो क्लास डिवीजन हो, चाहे वो कास्ट डिवीजन हो, चाहे वो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, है ना, चाहे वो रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो भले ही ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ग्लोबली, क्योंकि अब आप एक ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हो, ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा हो, तो आपके लिए इमेज मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज है। सॉफ्ट पावर बनानी पड़ती है, वरना तो वो तुम्हारे को मैनिपुलेट करते हैं आगे उसमें जब मीटिंग्स होती हैं। आपको इमेज बनानी है तो उस वे में भी मतलब जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, आपको वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको मोल्ड करूं, जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड थॉट्स हैं, जो ग्लोबली लगते हैं कि हाँ भाई दिस इज मॉडर्न थॉट्स, दीज आर नॉट कंजर्वेटिव थॉट्स, तो वो सारी आइडियोलॉजीज इंडिया में एंटर करी ग्लोबलाइजेशन के बाद, जिसके रिजल्ट हमने देखे कुछ जैसे पहनावे में हम देख सकते हैं उनके रिजल्ट, जैसे हम उसके रिजल्ट देख सकते हैं कि प्रोफेशन चेंज हुए अब वुमेन्स के बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर तक लिमिट नहीं है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, XYZ कुछ भी हो, दे आर इन एवरी सेक्टर। फिर आपके वुमेन के रोल में, वुमेन के लिए आप कह सकते हो कि हाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ज़्यादा हैं, या फिर ज़्यादा नहीं कह सकते तो कि एक पैरामीटर है गवर्नमेंट की नज़रों में कि हाँ वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पॉलिसी मोल्ड करनी है, जुडिशरी के ध्यान में भी चीज़ें हैं। तो आई डोंट नो ग्लोबलाइजेशन के अंडर इसको कितना डाल सकते हैं, पर ये सब चीज़ें हैं।
फिर नेगेटिव्स देखें, नेगेटिव्स और इनइक्वालिटीज जो क्रिएट हुई हैं वुमेन्स के लिए, तो एक तो अपना वही हो गया कि डबल बर्डन है कि उनको दो दो जॉब करनी पड़ती हैं, एक अपना Yes. नॉर्मल जॉब और फिर उसके बाद वो भी। फिर अपॉर्चुनिटीज में एक रह गया कि अपना जो वो नई अपॉर्चुनिटीज खुली है ना, वो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम की। हाँ, तो वुमेन अपना अपने रिस्पॉन्सिब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे कैन अर्न एंड कैन बी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन दैट। फिर और क्या है कि और क्या चैलेंजेस क्या, सॉरी? चैलेंजेस और क्या लगते हैं कि क्या सिर्फ वुमेन के लिए? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि लो पे वाला इसमें आएगा ना। आ, ये सिर्फ वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस इतने ही है। डाउरी केसेस आ सकते हैं, डाउरी सुसाइड। ये तो ज्यादा सोशल केसेस हुए, मतलब ये तो पहले से ही थे। ये दूसरे टॉपिक में आता है, वो अपना दूसरा टॉपिक था डिस्कशन, स्टेटस वुमेन ऑफ का नहीं वुमेन लेकिन इन इंडियन सोसाइटी। सो दीज वर द इम्पैक्ट्स की जो अपना वो था। और मूविंग फॉरवर्ड वी नीड टू लुक इनटू दैट। मूविंग फॉरवर्ड में वे फॉरवर्ड में लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि हर एक सेक्टर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग अ जनरल आइडिया। तो अभी हम लोग अपने अपनी सोसाइटी के मेन पार्ट्स डिस्कस कर लिए। उसमें हमारा क्या आ गया, यूथ आ गए, फिर उसके बाद बच्चे आ गए, फिर चिल्ड्रंस का हो गया। तो अभी कल्चर हम हो लोग गया। खेलते हैं कि ट्राइबल पे, कल्चर भी हो गया। तो अभी ट्राइबल पॉपुलेशन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है कि उनको, एक तो वो बोला कि बंजारों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि दे कैन क्रिएट, कि वो अपने कल्चर के उसमें दिखा के, या फिर कल्चर जो प्रैक्टिसेस थी जो ट्राइबल्स थे उनके मटेरियल, जैसे वो दिल्ली हार्ट हो गया आईएनए में, आईएनए दिल्ली हार्ट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है कि वो इकोनॉमी अपनी एक्सपेंड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं कल्चर पर उस पर। तो और एजुकेशन का हो गया जो अभी डिस्कस किया, एजुकेशन का और हेल्थ का, कि एजुकेशन में उनको सब्सिडीज और वो दी जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि वो ट्राइबल्स को बचाना चाहिए, तो उनको सब्सिडीज और वो दी जा रही है, हेल्थ केयर दिया जाता है, उनके लिए कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ ही चुका है जो कंपेयर करें पहले के कंपैरिजन में। और फिर पॉवर्टी आईटी एक सेक्टर। एक डायमेंशन था जो पता नहीं किसने छेड़ा था, पॉवर्टी, कि ग्लोबलाइजेशन का पॉवर्टी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मैं आई से कि पॉवर्टी की टर्म्स में अगर बात करूँ तो ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प करी है इस गैप को बढ़ाने में थोड़ा सा, क्योंकि बिफोर ग्लोबलाइजेशन, if globalization means competition at bigger level. So if we are talking competition at bigger level, we need some skill and we need a basic level of education. इंडिया में प्रॉब्लम क्या है इन इंडिया, दैट स्किल एंड दैट एजुकेशन लेवल, द एक्सेस टू बोथ इज नॉट टू मैनी. So so a masses, the person which have access to both, they were able to push themselves out of poverty. But there was a greater section, there was a greater mass who were a little above poverty. And when globalization thing happened in 91, in next 2-3 years they were back to poverty again. And because they don't have basic facility, because they don't have enough money, because they don't have education, because they don't have skill set, so they are trapped in a cycle due to this globalization, that they are not able to make themselves out of the poverty. So I think uh, globalization globalization has made a very negative impact when we will talk about expanding the gap between rich and poor. तो अभी अपना टॉपिक था कि वो अभी अपने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए, ट्राइबल्स और वो सब हो गया। तो अभी फिर उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो अपना जनरल टॉपिक था कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो
So what we concluded and what is the way forward, and would you like to add anything to that? और one और एक क्वेश्चन और कि एक और सेक्टर आ जाता है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, किसी ने बीच में टॉपिक छोड़ा था, तो पहले की राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास से व्हाट डू यू मीन बाय राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास? यार मिडिल क्लास का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास क्योंकि इंडिया में बेसिक अप टू 1990 एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन आ गया लोगों पे। मान लेते हैं कि 1947 के टाइम से अगर कंपेयर करें तो आप 30% पीपल आर यू नो लिटिल ठीक ठाक एजुकेटेड है, दे आर लिटिल अवेयर, दे आर लिटिल एजुकेटेड। when in such scenario we open our market, so private players come in, that private players need workforce, and that educated people, they were consumed by the private companies, by the private limited companies or so and so, by these firms, maybe IT firms, maybe manufacturing firms, foreign institution XYZ. So because they were consumed in such a great numbers, this led to a improved level of lifestyle, a improved level of their household economy, a improved level of access to resources, education, good health, good food, good living, so and so. So this created a new middle class. एक new middle class तभी आई जब opportunities आई, लेकिन उसका फायदा वही उठा पाए जो मूविंग अप, वो अपवर्ड मूव करने लगे तो एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया। यस। तो फिर उसके बाद कि हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड कि ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली लिया जाए ऑल ओवर द सोसाइटी? यार I'll say if we are concluding comment would be globalization was necessary. Globalization is necessary to those nation also which has a closed economy. So globalization is like a globalization is inevitable. It is bound to happen. You have to open your market to countries if you want to expand yourself also. It is like a give and take situation. But in terms when we talk about country like India, we have to deeply think, we have to deeply analyze that what kind of sector, what kind of resources, what kind of people, and what kind of product we can and up to what extent we can touch, yeah, we can inject this globalization globalization issue. So we have to analyze it first. For example, if bluntly, before bluntly applying this globalization or open market to Gujarat cotton workers, if a study would have happened, I think it would have given them a big opportunity to create a cotton industry manufacturing sector in Gujarat in very short span of time. So I think globalization was inevitable, no doubt in that. But a great study, a great data analysis was missing and is missing today also. So जैसे अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुआ है ट्रेडिंग का, ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें भी आपको लगता है कि वी हैव नॉट कंसिडर ऑल द फैक्ट कि एक्चुअल में जो होने चाहिए थे, और वी शुड लुक इनटू ये, तो मोर डाटा होना चाहिए और एनालिसिस होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉलिटिकल प्रेशर। जैसे हम अपनी इकोनॉमी आज भी नहीं खोलते हैं न्यूजीलैंड के बहुत सारे उसके लिए, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आ गए ना, वो इतने सस्ते आएंगे कि वो यहाँ की डेयरी मार्केट को खा जाएंगे पूरा। सो एक स्टडी जैसे उस सेक्टर में हुई है, ऐसी स्टडी हर एक सेक्टर में होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट कितने हुए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉजिटिव ज्यादा निकले इस पर्टिकुलर सेक्टर में या नेगेटिव ज्यादा निकले, और फिर हमको उसी हिसाब से एक्शन लेनी चाहिए। टैरिफ रेट बढ़ानी चाहिए या टैरिफ रेट घटानी चाहिए या फिर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए।
बट उधर भी चैलेंजेस है ना कि अगर वो ऐसे अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा या फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो देयर इज द रिसोर्सेज को भी एक्चुअली में एनालिसिस चाहिए ना कि इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं भी ग्राउंड अप बनाने के लिए, या फिर इसको सपोर्ट करने में, या फिर इंटरनेशनल प्लेयर जो कई मार्केट में उनको देने में फायदा रहेगा। नहीं, अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब ये स्टडी वाले एग्जांपल दूंगा, पता नहीं कितना यहाँ पे रिलेवेंट रहेगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स कंपनी है, कोई भी XYZ की चिप्स कंपनी है या कुछ और बना रही है, हमारा फूड एंड कंज्यूमेबल आइटम्स है, हम चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, XYZ कुछ भी, तो वी सी कि यार अब क्योंकि एक ब्रांड है, लेस कंपनी है या XYZ कंपनी है, वो एक कंपनी है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो कहीं भी अपनी फैक्ट्रीज खोल सकती है, कहीं भी अपने आउटलेट खोल सकती है, कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकती है। ग्लोबलाइज मार्केट है, ग्लोबलाइज इकोनॉमी है। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे USA गवर्नमेंट को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आप लेज बेच रहे हो, उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप पाम ऑयल में बना के बेच रहे हो। सो वहाँ पे स्टडी है और उन्होंने उनके पास डेटा है कि भाई दिस इज नॉट गुड फॉर आवर पीपल, सो यू आर बाउंड नॉट टू यूज पाम ऑयल। लेकिन जब सेम चीज़ इंडिया में आती है तो यहाँ पे कोई ऐसी बाउंडनेस ही नहीं है उस कंपनी के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर कि वो धड़ल्ले से पाम ऑयल यूज़ करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। माई पॉइंट इज अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दैट पॉइंट कि वो स्टडी और वो एक लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है अगर आप ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली लेके चलना चाहते हो। कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नीड है डीप एनालिसिस की। यस, ओके। So Anand, what would you like to converse की पूरी conversation से what to conclude? ऐसा कुछ है नहीं, बट मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या है ना, ये तो ठीक है। तो अभी माय कंक्लूजन है कि हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर्स की बात करी, तो मैं सेक्टर बाय सेक्टर जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपना वो हो गया कि कल्चर सेक्टर है कि हमारे को हमारे आइडियाज प्रमोट करने चाहिए, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट नीड टू कंजर्व आवर कल्चर की, जैसे लैंग्वेज कंजर्वेशन के ऊपर होता है कि कंपल्शन हो चुका है इंडस्ट्रीज में, और देखना चाहिए कि जरूरी नहीं है इंग्लिश ही हो, नेटिव लैंग्वेज में भी जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए, और ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ग्राउंड अप बनाना चाहिए कि हमारी लैंग्वेजेस और कल्चर को थोड़ा प्रिजर्व रहे, और यही है अभी कल्चर में मेरे का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कल्चर से अपना उसमें क्या कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन का ये है कि माँ बाप को देखना चाहिए, देयर नीड टू बी इनिशिएटिव फ्रॉम योर पेरेंट्स कि दे नीड टू सी कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, और देयर मस्ट बी अवेयरनेस की गवर्नमेंट की साइड से कि देयर नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि व्हाट ऑल द इम्पैक्ट्स कैन व्हाट की क्या हार्म्स हैं और क्या वो हो सकते हैं, और इट नीड टू बी डिजाइन यूजिंग अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर और समथिंग लाइक दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों, साइकोलॉजी कंसिडर करी जाए इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स को, कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो और ये आइडियाज शेयर हों कि हाउ इट कैन इफेक्ट द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन का उधर से कट आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यूथ पे आते हैं, तो यूथ के लिए द साइबर सिक्योरिटी नीड टू बी टाइटेंड, एंड द मटेरियल जो भी अवेलेबल होता है, देयर नीड टू बी सर्विलेंस, एंड कि मतलब कोई रिपोर्ट अगर सबमिट होती है तो उसको विद इन द पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स में उसको उधर से रिमूव कर दिया जाए। और फिर उसके बाद और यूथ के साथ जो हमारे चैलेंजेस आए थे कि यूथ के साथ कई चैलेंजेस थे, फार्मिंग स्ट्रगल की, वो फैमिली डायनामिक्स, और दूसरा कि वही अपना अवेयरनेस कैंपेन की उनको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि यू टू बी हैप्पी यू नीड टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, कि अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए वो सब, कि गवर्नमेंट को ये इशूज भी मेंशन करने चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में इम्पैक्ट डालता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में, कि नॉट जस्ट देयर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कि और इवेंट्स वगैरह में पार्ट लेना चाहिए वो दैट ऑल, और मेंटल
मेंटल हेल्थ पे कि अभी मेंटल हेल्पलाइन का दिल्ली में भी जो नंबर है उस पर भी तो फोन मिलाओगे वो बिजी जाएगा। तो देयर नीड टू बी मोर सीरियस इनिशिएटिव की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर कनेक्ट कर सके, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और फिर ही डू नॉट हैव एनीथिंग एनीवन टू। और फिर उसके बाद यही सब है। फिर उसके बाद अपना चिल्ड्रन का हो गया, फिर अपना वुमेन का हो गया कि एजुकेशन में वही कि एजुकेशन और प्रोग्राम्स इनिशिएट होने चाहिए और देयर नीड टू बी मोर एंटरप्रेन्योरशिप की। जैसे अभी प्रोग्राम चल रहे हैं ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कि और भी नए ग्रुप्स बने और तो नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो कि सो दे कैन फाइट ग्लोबलाइजेशन, क्रिएट देयर आइडेंटिटी इन द न्यू वर्ल्ड। और नए इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्टर्स और मतलब जो आइडिया शेयर करते हैं उनकी जरूरत है, जो हु कैन शेयर एग्जांपल्स और इनिशिएटिव्स की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और वही अपना एड कैंपेन वाला कि उसमें साइकोलॉजी कंसल्टेंट की है। और फिर अपना एम्प्लॉयमेंट और वर्क एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर कि हमने इसका ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट देखा कि अपॉर्चुनिटी तो मिलती है मगर वो अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड के लिए खुल जाती है। मतलब कि अगर VFX आर्टिस्ट है, अगर वो वहाँ कर रहा है और वो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो सेम आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो दे विल मूव ऑन टू बांग्लादेश और समवेयर एल्स जहाँ पे उनको इजीली एक्सेसिबल होगा। सो उसके लिए कम्युनिटीज क्रिएट होनी चाहिए प्रोफेशनल्स की, और फिर सो दे कैन पुट देयर कि उनको मिनिमम वेज इतनी मिले। जैसे IT प्रोफेशनल्स हैं, दे आर कंसिडर्ड फॉर दे डू, और फिर स्ट्रगल ज़्यादा होती है, एक्चुअल मिलता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है एक्सेसिव, क्योंकि एवरीवन इज ट्राइंग टू कट अदर वन डाउन ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वो एक डाटा होना चाहिए और एक्चुअल में कंपटीशन उस लेवल का होना चाहिए जितना नेसेसरी है। इतना नहीं कि लोगों का पैशन ही ये बन जाए कि सिर्फ अचीव करना है, जॉब लेनी है और उसके बाद पैशन नहीं करना। पैशन एक्चुअल में उन कामों में लगना चाहिए जो सोसाइटी को बेटर बना सके, ना कि सिर्फ एक डिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। सो फिर उसके बाद अपना आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का कि हमने देखा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक नीश क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। कि फिर उसके बाद कि मगर चैलेंजेस भी आते हैं कि उनकी स्किल लेवल कम होती है, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, तो वो उसमें नहीं मूव ऑन कर सकते। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले होते हैं उनको इंग्लिश का उसका नॉलेज नहीं होता, तो गवर्नमेंट अपना वही इनिशिएटिव जो हमने बोले थे कि वो प्लेयर्स को जो ऑलरेडी हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स को सेटअप करें और फिर उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएं। फिर उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग हो जिसमें बेसिक मैनेजमेंट टेक्निक और तुम्हारा एक वगैरह का नॉलेज हो जिससे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट कर सकें। और कि ट्रेडिंग हो गया, तुम्हारा शिपमेंट हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, उन सभी सेक्टर उनको कि इससे वो अपॉर्चुनिटी अपनी एक्सप्लोर कर सकेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, और गवर्नमेंट को इन लोगों को कंसिडर करना चाहिए कि दे माइट नॉट ग्रेट कि वो इतना ट्रेड ना कर पाए बाहर वाली वो टैक्स देती, मगर अगर इनको डेवलप करा तो ये फ्यूचर में बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट जस्ट लुक इनटू कि हमारे पास ज्यादा पैसे किससे आएंगे, वी शुड लुक इनटू कि फ्यूचर में कौन सा ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट देगा इंडिया को। तो इंडिया नीड टू नेगोशिएट देयर ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली। फिर अपना कि राइज ऑफ मिडिल क्लास की वर्क लाइफ बैलेंस की उन पर ज़्यादा काम का लोड रहता है। फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट, उनको जॉब की वजह से ही घर से उधर जाना पड़ता है, गांव से बाहर आते हैं। फिर उसके बाद कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन उसके हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, पर जॉब उस परसेंटेज से नहीं बढ़ता, तो उनके लिए चैलेंजेस बढ़ता है। इन्हें फिर वही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वो जब इतनी दूर उससे दूर रहते हैं और दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली, आइडिया शेयर नहीं होते और दे आर लूजिंग देयर कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। शेयर कॉन्फिडेंस। तो ये है कि मिडिल क्लास में इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। तो ये था मेरा कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सभी चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड एज अ इंडिया
we can fight these challenges. First, we need to be aware of these challenges, and we need a lot of data so we can make reasonable choice based on our observation. So we will be looking more into such topics in the further discussion. So that was the conclusion by us three about the effect of globalization on Indian society. So thank you everyone for watching. If you like such content and like to be aware about more, then please do subscribe and that's